Okay. So just let me know if you people are able to see my screen. Yes, sir. Okay. Okay, so let's start. So today we are going to cover, uh, in fact, we are going to start with Azure. Okay. So we have concluded our M365 and we are going to start with Azure. Okay. Now, uh, you can go on. Thanks. So first, let me, I have created this basic documents for you to understand the portals and various options and services available in Azure. But even before that, I want to show you that what exactly is Azure. Okay. Okay. So Azure is a cloud service. Okay. So when I say Azure, okay. So first of all, you need to understand what is on-premises and what is. Okay. So most of you already know what is on-premises and what is cloud. Let me put this. Okay, so this is your on-premises and this is your cloud. Okay. So what I mean to say, anything in your office, okay, anything in your office or which is in your data center, okay, that is owned by you. Okay, servers, laptops, switches, network devices, applications, okay, all the physical components for data center that is owned by you is called as on premises. जैसा मेरा सर्वर है, मेरा सब कुछ मेरा, ठीक है, एप्लीकेशन मेरा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लाइसेंस लेके इंस्टॉल किया है, ओके, तो सब कुछ जो मेरे ऑफिस के डेटा सेंटर के अंदर दिखता है एंड आई एम द ओनर, दैट इज कॉल्ड एज ऑन प्रीमाइसेस. ओके, यू बी. और क्लाउड में क्या है, इट इज रेप्लिका ऑफ ऑन प्रीमाइसेस, लेकिन कैसा है, देयर विल बी सम सर्विस प्रोवाइडर लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, फिर बाद में AWS है, फिर GCP, गूगल क्लाउड, बाद में और भी बहुत है, ओरेकल है, ठीक है, और इंडिया का कंपनी है जोहो बोल के है. ओके, सो दे आर ऑल the various cloud providers. So, but majority of the market is captured by these three guys. Okay, Microsoft, AWS, and GCP. Microsoft का जो product का नाम है, it is Azure. Microsoft Azure, Amazon Web Service, and Google Cloud Platform. So what they uh, came up with the idea, actually AWS invented. So what they thought, कि by you don't buy servers, you don't buy applications, you don't buy any licenses or anything. You just leave it to us. Okay, you just leave it to us. Okay, we will host the servers for you. Okay, so what the cloud organization tell, that we are going to host the servers for you. Okay, तो यहाँ पर उनके डेटा सेंटर में ऐसे सर्वर्स रहेगी बहुत सारे.
and they are telling that I will purchase this server, okay, and I will install the softwares, I will install the operating systems, and I will take care of all the hardware patchings, okay, and updates and everything. You don't need to worry, okay? You don't need to upgrade your system. You don't need to do anything from your side. What you will get is you will get a platform, okay, or you will get a service, or you will get a pure software service, okay? You will either get an infrastructure, you will get an infrastructure, or you will get a platform, or you will get a service. So I will explain all the terms what I am trying to tell. तो क्लाउड क्या बोलता है कि सब कुछ मेरा रहेगा और मैं तेरे को 3 टाइप्स के सर्विस दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस दूंगा, प्लेटफॉर्म के सर्विस दूंगा और एक सॉफ्टवेयर सर्विस दूंगा, ठीक है? तो तेरे को जो चाहिए वो ले ले, ठीक है? नाउ हियर आई वांट टू एक्सप्लेन यू. So there are 3 offerings from cloud. Okay, the first offering is IaaS, second is PaaS, third is SaaS. IaaS क्या है? Infrastructure as a service. PaaS is platform as a service. SaaS is software as a service. Okay, so cloud, all these cloud providers are telling you that we are ready to give you 3 kinds of services that you leverage on your on-premises server, on-premises data center. Okay, so you can take whatever you want. Okay, so now we have a question that ये एक्चुअली होता क्या है? IaaS क्या है, PaaS क्या है, SaaS क्या है? तो जब भी क्लाउड पढ़ोगे तो तुम्हारे को ये चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है. ओके, सो लेट मी, सो दिस इज क्लियर. लाइक ऑन प्रीमाइसेस मींस मेरा डेटा सेंटर, मेरा सर्वर, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा एप्लीकेशन, ओके, सब कुछ मेरा. क्लाउड बोले तो सब कुछ उनका, मेरे को सर्विस मिलेगा, ठीक है? सो आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल, ठीक है? यहाँ पर ये मेरा क्लाउड है और क्लाउड में जैसा मैंने बताया, आई हैव दिस IaaS. तो सबसे पहले देखते हैं IaaS क्या है. IaaS इज नथिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब क्या है? ये यहाँ पर तुम्हारे को एक सर्वर दे देगा, ठीक है? सर्वर क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. वो बोलेगा कि इसके अंदर तुम तुम्हारे VMs बनाओ, ठीक है? इसके अंदर तुम्हारा स्टोरेज बनाओ, हार्ड डिस्क बनाओ, इसके अंदर तुम्हारा नेटवर्क बना लो, ठीक है? ये सब चीजें ना ये तुम्हारे को देगा IaaS. ओके, सो यू हैव द ऑप्शन टू प्रोविजन योर ओन VMs, वर्चुअल मशीन्स. तुम्हारा वर्चुअल मशीन्स बनाओ, ठीक है? जैसा तुम लोग फिजिकली मशीन खरीदते हो ऑन प्रीमाइसेस के लिए, वैसा ये क्या बोलता है, एक वर्चुअल मशीन बना लो. काहे को तुम लोग फोकट का वो मदरबोर्ड वो सब काहे को ले रहे हो तुम लोग? लैपटॉप मतलब यू डोंट नीड टू परचेस एनीथिंग. ओके, you just need one device to control all this thing. Okay, तो सर्वर्स तुम खरीदो मत. सर्वर्स मेरे पास रैक्स है, इसमें तुम सर्वर्स बनाओ, ठीक है? और इसमें तुम स्टोरेज बनाओ, इसमें तुम नेटवर्क बनाओ, इसमें तुम वेब एप्स बनाओ, जो भी तुम्हारे को बनाने का है इसमें बना लो, ठीक है? तो दैट इज IaaS. ओके, दे विल गिव यू द प्लेटफॉर्म, दे विल गिव यू द हार्डवेयर. वो हार्डवेयर के अंदर तुमको क्या इंस्टॉल करने का है तुम इंस्टॉल कर लो, खाली वेब इंटरफेस के थ्रू वो तुम्हारे को जो है कनेक्शन होगा एंड यू कैन एबल टू मैनेज वाया वेब इंटरफेस. सेकेंड है PaaS. PaaS क्या है? PaaS वो क्या बोलेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सर्वर्स, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, आई विल गिव यू एवरीथिंग रेडीमेड. मैं तेरे को सर्वर कॉन्फ़िगर अपने को दिखेगा भी नहीं. Okay, I will give you servers configured. I will give all the application, the platform configured. तू सिर्फ इसमें कोडिंग कर. ओके, इसमें सिर्फ तेरे को क्या करना है? कोडिंग करना है, या तो तेरे को प्रोग्रामिंग करना है, या तो तेरा खुद का एप्लीकेशन पब्लिश करना है. तो दैट इज PaaS.
ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा है, मेरे को सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे को उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर मेरे को कोडिंग करना पड़ेगा, और मेरे को खुद स्टोरेज उसका सब मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उसका पैचिंग भी मेरे को करना पड़ेगा। पैस में ऐसा नहीं है, पैस में क्या बोलेगा कि ये सर्वर ओएस वीएस ये सब मैं देख लेता हूँ, तेरे को दिखेगा भी नहीं, तेरे को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दूंगा। ओके, सो यू कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म कोडिंग, खाली तू अपना एप्लीकेशन बना और इसमें डिप्लॉय कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल है तुम्हारा वेब ऐप। पहले क्या होता था ऑन प्रेमाइसेस में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, मेरे को सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर बाद में मेरे को वेब सर्विस इनेबल करना पड़ता था ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जाके, फिर उसके अंदर मेरे को वेबसाइट लॉन्च करना पड़ता था। ठीक है, और उसके अंदर फिर मेरे को वो प्रोग्राम से के थ्रू मेरे को वेबसाइट पब्लिश करना पड़ता था आईआईएस वेबसाइट में। ठीक है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे को माइक्रोसॉफ्ट करके दे देगा, या तो अमेजन वेब सर्विस है जो भी है, एंड यू हैव टू जस्ट फीड योर कोड्स ओवर देयर। तुमको सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च करना है, दैट इज फास्ट। सो यहाँ पर क्या सर्वर वर्वर स्टोरेज सबका टेंशन हट जाता है। ES में क्या है, तुम्हारे को सर्वर स्टोरेज सब तुमको देखना है। तीसरा सर्विस है SaaS। ये क्या बोलता है, भाई तेरे को कोडिंग भी जरूरत नहीं, मतलब तेरे को सर्वर जरूरत नहीं, कोडिंग भी जरूरत नहीं, सब मेरा सर्विस, मैं सर्विस बनाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तेरे को सिर्फ सर्विस मिलेगा। आई विल क्रिएट माई ओन सॉफ्टवेयर। ओके, यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर योर सॉफ्टवेयर। मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है सॉफ्टवेयर के, तेरे को क्या चाहिए तू ले ले। ओके, यू विल ओनली बी अ कस्टमर हु will receive my service and who can enjoy my service. Okay, you don't need to bother about the underlying infrastructure or underlying codes or application and all. Everything is managed by the cloud provider. They have the launched or pre-created software. So you can use the software and you can modify that software as per your wish. Example के लिए Exchange, Teams, ठीक है, और या तो तुम्हारा हॉटमेल, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। यहाँ पर टीम सॉफ्टवेयर क्या तुमने इंस्टॉल किया, नहीं इंस्टॉल किया, बट यू आर गेटिंग द चैट सर्विस, यू आर गेटिंग द मीटिंग सर्विस। ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाया है टीम्स। ठीक है, वैसे ही गूगल मीट वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर उन लोग ने बनाया है, एंड वी आर ओनली गेटिंग द सर्विस एज अ एंड यूजर। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। So now your organization has to decide कि तुम्हारे को yes चाहिए, PaaS चाहिए या SaaS चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, तीनों रखती है। कोई कोई एप्लीकेशन के लिए बोलती है कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, आई विल इंस्टॉल दी सर्वर्स एंड आई विल टेक केयर। कोई कोई इसके लिए बोलती है नहीं नहीं सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है, आई विल ओनली गिव द कोड्स, आई वांट माय कोड्स टू बी पब्लिश इन द क्लाउड। और दूसरा अब जो तीसरा करती है वो काम है, बोलती है कि नहीं मेरे को मेल सर्विस चाहिए, टीम्स सर्विस चाहिए। तो ये है एक्सचेंज ऑनलाइन, जो अपन प्रीवियस इसमें सीखे थे। तो ये जो M365 है ना, दैट इज अ प्योर SaaS प्रोडक्ट। इसके अंदर तुम्हारे को एक्सचेंज ऑनलाइन, टीम्स, शेयर पॉइंट सब मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ प्योर SaaS प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने ना तो कोई सर्वर इंस्टॉल किया, ना तो मैंने खुद का एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल किया, ना तो मैंने मेरा टीम्स का सर्वर इंस्टॉल किया। Everything is pre-installed. Okay, you just have to configure. You have to just fetch your details, your usernames, okay, your own passwords, or the configuration related to your environments. Okay, so that is the example of PaaS. Okay, so now we will learn mostly focus on yes, infrastructure as a service. ठीक है, SaaS अपने देखा, SaaS में हमने देखा M365 देखा। ठीक है, so what is infrastructure as a service? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में तुम्हारे को माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा ये मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है, ये मेरे रैक्स है, मतलब दिस आर फिजिकल हार्डवेयर। इसमें के अंदर तेरे को क्या बनाने का बना ले, तेरे को स्टोरेज बनाने का है, तेरे को बीच वर्चुअल मशीन बनाने का है, क्या बनाने का बना ले तेरे को। ठीक है, तो ये मेरा कंपनी है, समझो मेरा कंपनी है टाटा.com।
ये मेरा टाटा का कंपनी है, और मैं एज ए टाटा में मैं आई एम एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीएम। एक वर्चुअल मशीन बनाना है। वर्चुअल मशीन बोले तो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपन ने ऑन प्रेमाइस एडी जैसा इंस्टॉल किए ना, वैसा एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके मेरे को क्लाउड पे डालना है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलेगा, ठीक है ये ना इतना बड़ा सर्वर है, तेरे को एक वीएम बनाने का है ना, तो बोलेगा ठीक है ये ले, एक वीएम बना ले। तो इतना सा सर्वर में, इतने बड़े सर्वर में एक वीएम तुम्हारे को दे देगा। दूसरा वीएम बनाएंगे तो ये जगह ले लेगा। और कल के दिन रिलायंस कंपनी बोलता है कि मेरे को वीएम बनाना है, तो रिलायंस बोलेगा अच्छा ठीक है तेरा मशीन यहाँ बना ले, ठीक है। सिमिलरली एल बोलता है मेरे को भी एक वीएम बनाना है, तो यहाँ बना ले। तो बोलने का मतलब है, ये जो सर्वर है ना, ये जो रैक है ना, ये रैक में ना ये सब सर्वर्स है, ठीक है। सर्वर 1, सर्वर 2, ये फिजिकल सर्वर है, ब्लेड सर्वर है। इसके अंदर छोटा छोटा जगह जो जो क्रिएट करता है उसको दे देगा वो। ओके, सो दिस सिंगल सर्वर इज शेयर्ड बाय मल्टीपल कंपनीज। ओके, ये जो सर्वर 1 है, इसके अंदर कम से कम समझो 20 से 40 वीएम बनता है। उसमें एक वीएम वो रिलायंस के लिए जगह दे देगा, एक टाटा के लिए दे देगा, एक एल के लिए दे देगा, एक मेरा जो है मेरा कंपनी है जरीमरी.com, उसके लिए दे देगा, ठीक है। तो दिस सर्वर स्पेस इज शेयर्ड बाय मल्टीपल कंपनीज। ओके, आई कैन ऑल्सो, ने टाटा बोलता है नहीं मेरे को ये जो सर्वर है ना शेयर नहीं करना है, तो वो टाटा के लिए वो क्या करेगा, डेडिकेटेडली एक सर्वर दे देगा। बोलेगा कि तेरे को जो भी वीएम्स बनाना है ना, तो यहाँ पर जाके बना ले। तो ये दिस पर्टिकुलर सर्वर, दिस फिजिकल server will only be hosting Tata's VM. No other companies can launch their VMs over there. Okay, and this is the shared server where multiple companies can host their VMs on a single server. Okay. Now, when I speak about Azure, जो ये सब चीज बनाते ना हम लोग Azure में, क्लाउड में कुछ भी चीज बनाते हुए, उसको बोला जाता है रिसोर्सेस, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन बनाया वो रिसोर्स है, एक नेटवर्क बनाया वो एक रिसोर्स है, हार्ड डिस्क बनाया उधर एक रिसोर्स है, एक वेब ऐप बनाया वो भी रिसोर्स है। सो एवरीथिंग इन एज्योर इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस। ओके, दिस रिसोर्सेस आर क्लब्ड इनटू रिसोर्स ग्रुप्स, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप क्या है, इट इज क्लबिंग ऑफ रिसोर्सेस और इट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जैसा मैं सारे वर्चुअल मशीन्स को एक रिसोर्स ग्रुप में रखूंगा, सारे हार्ड डिस्क को एक स्टोरेज बोलकर रिसोर्स ग्रुप में रखूंगा, नेटवर्क को पूरे एक रिसोर्स ग्रुप में रखूंगा, या तो डिपार्टमेंट वाइज जैसा सेल्स टीम के लिए एक रिसोर्स ग्रुप बना दूंगा और बोल दूंगा भाई तुम्हारे पूरे मशीन सेल्स रिसोर्स ग्रुप में रहेगा। वैसे आईटी वाले को बोलूंगा बोलूंगा कि दिस इज द रिसोर्स ग्रुप एंड दिस विल बी ओन बाय यू एंड यू कैन क्रिएट ऑल द रिसोर्स इन द रिसोर्स ग्रुप दैट इज नेम्ड एज आईटी। So in this way, I will have the idea that which resources belong to which resource group. Okay, so what resource is owned by whom. Okay, so resource group is assigned is for categorization purpose. Okay, and also for billing purpose. Like I will able to understand ki which team has utilized more resources. Okay, so you can categorize billing also in resource group. So I will have idea that कि IT ने ये महीने में इतना रिसोर्स बनाया है और इसका बिल इतना है, सेल्स टीम ने इतना किया है, फाइनेंस टीम ने इतना यूज किया है। So being I can have a resource group and I can have the idea, all those idea from the resource group. So instead of creating everything on a root, okay, on the root of the cloud environment, I can group all my resource into a resource group. So it is just like a creating a folders in your laptop, जहां पर तुम करते हो सब अपनी मूवीज के लिए अलग फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग फोल्डर, MP3 के लिए अलग फोल्डर्स, ठीक है, स्टडीज के लिए अलग फोल्डर। वैसे ही ये कैटेगराइजेशन के लिए रिसोर्स होता है। तो रिसोर्स, बिना रिसोर्स ग्रुप के तुम्हारा कोई रिसोर्स नहीं बनता है। जब भी कोई रिसोर्स तुम बनाओगे, इट विल ऑटोमेटिकली ask for resource groups. Okay, so let me show you the example. तो जब तुम लॉग इन करोगे Azure में, so you have to make sure
दैट दिस इज द पोर्टल, portal.azure.com। ये वेबसाइट तुम्हारे को याद रखना है। यहाँ पर तुम्हारे को जब रिसोर्स क्रिएट करना है तो होम पेज में क्रिएट ए रिसोर्स बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इट इज नथिंग बट इट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, इट विल लीड यू टू अ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस इज नथिंग लाइक अ प्ले स्टोर। जैसा तुम्हारे मोबाइल में प्ले स्टोर है ना, वो मार्केट प्लेस है, एज़्योर में मार्केट प्लेस बोलते हैं। तो वहाँ मार्केट प्लेस में ना बहुत सारे रिसोर्सेज है। देखो, जैसा मैंने उसमें क्लिक किया, यहाँ पर वो बताएगा भाई तुमको क्या वर्चुअल मशीन बनाना है, क्यूबरनेट बनाना है, क्या बनाना है, डेटाबेस बनाना है या एप्स बनाना है, क्या है। तो वर्चुअल मशीन क्लिक करके मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा। स्टोरेज बनाना है तो स्टोरेज क्लिक करूंगा तो स्टोरेज का ऑप्शन देगा मेरे को। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर वेयर यू कैन create and install resources. So let me show you कि एक वर्चुअल मशीन कैसा बनाना है। सो क्रिएट अ रिसोर्स। ओके, और जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो बैकग्राउंड में क्या क्या पूछता है। ठीक है, सो आई एम इन माय रिसोर्स, आई एम लॉग्ड इन टू माई portal.azure.com। portal.azure.com तुम्हारे को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, इफ आई क्लिक ओवर हियर, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, देखो इसमें जो लिखा है, ये जो नंबर दिया है ना सब्सक्रिप्शन, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है जो मैंने खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट से। ओके, एंड इट इज जस्ट लाइक एनी सब्सक्रिप्शन। जैसा तुम्हारा हॉटस्टार का, नेटफ्लिक्स का जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही तुम कुछ देख सकते हो। वैसे ही एज्योर में एक सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद ही तुम कुछ भी बना सकते हो। अब ये सब्सक्रिप्शन में देखो, मेरा जिसमें करंट कॉस्ट है 2,500 मैंने खर्चा किया है अभी तक का। मैंने जो ये 1 महीने का है, मतलब 23 तारीख से आज तक मैंने 2,500 का रिसोर्स खर्चा किया है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन होने के बाद ही यू वुड बी एबल टू क्रिएट अ रिसोर्स। ओके, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो तुम नहीं बना सकते हो। तुम तुम्हारे आईडी से लॉगिन करो portal.azure.com में, तुम्हारा ये होम पेज ओपन होगा। ठीक है, और जब तुम यहाँ पर क्लिक करोगे ना क्रिएट रिसोर्स, तो तुम्हारे को लिख के आएगा कि प्लीज बाय, मतलब परचेज अ सब्सक्रिप्शन और यू डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन, ऐसा कुछ एरर आएगा। लेकिन मेरे को एरर नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब एंड आई हैव एक्टिव सब्सक्रिप्शन इन प्लेस। ओके, सो यहाँ पर मैं वैसा पहला बनाता हूँ एक वर्चुअल मशीन। आई विल क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन। तो एक वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम में क्या क्या चीज पूछता है, देखो मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन हाँ है, मेरे पास है। You can have multiple subscription, but in my case, I have only one subscription. I will choose subscription. और मैंने बोला था कि जो भी रिसोर्स बनाते हो, पहला तुमको रिसोर्स ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट। ठीक है, अगर पहले से रिसोर्स ग्रुप है तो ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। तो मेरे पास इतने रिसोर्स ग्रुप है जो मैंने बना के रखा था, लेकिन आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नया रिसोर्स बनाता हूँ और मैं यहाँ पर डालता हूँ ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स। ओके, ऑनलाइन बैच। ठीक है, एक तुम्हारे बैच के लिए मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया। अभी तुम्हारे जो भी वीएम स्टोरेज जो भी बनेंगे सब इसके अंदर बनेंगे। अब वो वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑनलाइन वीएम 1। ठीक है, ये तुम्हारे मतलब नेमिंग कन्वेंशन में पहचानने के लिए रखा हूँ कि ऑनलाइन वीएम 1। अब ये पूछता है कि कहाँ बनाना है, तो यू हैव द ऑप्शंस, यू कैन सिलेक्ट इंडिया। अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, साउथ इंडिया में सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा चेन्नई के डेटा सेंटर में बनेगा। ठीक है, एंड अगर वेस्ट इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा जो पुणे का डेटा सेंटर है वहां पर बनेगा। ठीक है, सो आई विल सिलेक्ट फॉर दी डिफॉल्ट ईस्ट यूएस, बिकॉज यहाँ पर मेजोरिटी सब कुछ सपोर्टेड है। इंडिया के डेटा सेंटर में कुछ सपोर्टेड है, कुछ सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडेंसी रिक्वायर्ड। ये मैं बाद में बताऊंगा क्या है अवेलेबिलिटी जोन, फिर वर्चुअल मशीन स्किल सेट, अवेलेबिलिटी सेट, ये सब क्या मैं बाद में बताता हूँ। और सिक्योरिटी टाइप आई विल गो टू स्टैंडर्ड बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पर ये पूछता है क्या करना है तुम्हारे को, यूबंटू इंस्टॉल करना है या सर्वर इंस्टॉल करना है। तो मैं बोलूँगा
मेरे को ना विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर इंस्टॉल करना है। ओके, तो ठीक है। फिर बाद में वो बोलेगा कि क्या कैसा कौन सा साइज चाहिए, 8 GB रैम, 16 GB रैम। तो इफ आई सी ऑल साइज, तो यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारे को 16 GB रैम चाहिए तो ये वाला सिलेक्ट करो, 32 GB चाहिए तो ये वाला सिलेक्ट करो। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गो विथ 32 GB, सॉरी 8 GB रैम। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे को यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं डालता हूँ ऑनलाइन यूजर 1। ठीक है, पासवर्ड मैं दे दूंगा जो भी 14 कैरेक्टर का पासवर्ड है, छोटा पासवर्ड नहीं लेगा वो। और पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछता है कि तुम्हारे को कौन सा पोर्ट ओपन चाहिए, आरडीपी। क्योंकि अगर आरडीपी पोर्ट ओपन रहेगा तो ही वो मशीन्स के अंदर मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। ओके, अगर मैं इसको नन कर दूंगा ना तो मेरा ये वर्चुअल मशीन बना के फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उस मशीन का रिमोट ले ही नहीं सकता हूँ। तो ये मशीन मेरा क्लाउड में बन जाएगा, लेकिन उसका कंसोल एक्सेस कैसा करूंगा? उसका कंसोल एक्सेस करने के लिए मेरे को ये जो है आरडीपी पोर्ट 3389 इनेबल करना पड़ेगा, इफ इट इज विंडोज मशीन। अगर लिनक्स मशीन है तो मेरे को पोर्ट ये 22 इनेबल करना पड़ेगा। ये जो है लिनक्स मशीन कनेक्ट करने के लिए पोर्ट है, और 3389 जो है विंडोज मशीन कनेक्ट करने के लिए पोर्ट। ठीक है, अगर वो मशीन कोई वेबसाइट होस्ट कर देता है तो अपने को ये HTTPS भी इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा वुड यू लाइक टू यूज एन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यस आई कंफर्म। ठीक है, तो एक वर्चुअल मशीन बनाने से पहले तुम्हारे को इतना चीज करना पड़ता है, तुम्हारे को रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है, तुम्हारे को इमेज देना पड़ता है। ठीक है, फिर तुम्हारे को पोर्ट्स ओपन करना पड़ता है, तुम्हारे को साइज सिलेक्ट करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। और उतना ही नहीं, यहाँ पर अगर नेटवर्किंग में जाऊंगा तो यहाँ पर देखो तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक वीनेट बन गया, ऑनलाइन बैच वीनेट। ठीक है, जो मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया ना, उसी नाम से एक वीनेट भी बन गया तुम्हारे को। तुम नहीं तो तुम तुम्हारे नाम से क्रिएट न्यू कर सकते हो। तो मतलब बोलने का मतलब है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन, ओनली वर्चुअल मशीन इज नॉट गोइंग टू बी क्रिएटेड, व्हाट एल्स इज गोइंग टू बी क्रिएटेड? अ रिसोर्स ग्रुप, अ वीनेट, एक वर्चुअल नेटवर्क भी बनेगा, एक सबनेट भी बनेगा, एक पब्लिक आईपी भी मिलेगा। तो ये सारे चीज बनने वाले हैं वर्चुअल मशीन के साथ। ठीक है, उतना ही नहीं, तुम्हारे को एक ओएस डिस्क ड्राइव भी मिलेगा। ठीक है, तो इट इज सिंपल, लाइक तुम्हारा जो मशीन बनाते हो लैमिंगटन से लेके आके, तो तुम क्या क्या लेके आते हो? तुम हार्ड डिस्क लेके आते हो, तुम बाद में वो लैन कार्ड रहता है उसमें, फिर बाद में वो वाईफाई से कनेक्ट करते हो, माउस लेते हो, सब कुछ लेते हो। ठीक है, तो वैसे ही वर्चुअल मशीन भी बना रहे हो तो तुम्हारे को हार्ड डिस्क मिल जाएगा उसमें। और ये नेटवर्किंग तो जरूरी है, क्योंकि ये क्लाउड पे है, तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, सो गो ओवर हियर। बाबा, ओके, सो एंड सो जब मैं मशीन क्रिएट करता हूँ तो उसमें तुम्हारे को नेटवर्किंग, स्टोरेज, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहला तुम्हारे को चाहिए सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज अ वे ऑफ बिलिंग ऑन हाउ मच यू यूज ऑन एजोर। तो तुम्हारे को एक सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी तुम्हारे को मिल जाएगा, ये मैं बाद में बताता हूँ क्या करके। एक एजोर अकाउंट चाहिए, उसके अंदर रिसोर्सेस है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्सेस है और रीजन। तो तुम जो भी रिसोर्स बनाओगे एक रीजन में जाके ये होगा, जैसा सेंट्रल यूएस, ईस्ट यूएस। ठीक है, तो व्हेन यू क्रिएट एनीथिंग यू नीड दिस प्री रिक्विजिट सब्सक्रिप्शंस।
regions and zones. So remember your subscription is used for billing purpose. You will be billed per hour basis. तो पर घंटे के हिसाब से तुम्हारा चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इसमें एक कैच है, मैं बताता हूँ कैसा है, ठीक है। एंड यू आर दी टेनेंट, तुम कौन हो, तुम भाड़ोत्री हो, ओके। सो व्हाट इफ यू परचेज अ सब्सक्रिप्शन, यू आर अ टेनेंट, ओके। सो रिसोर्स ग्रुप, सो यूर रिसोर्स ग्रुप इज यूज फॉर लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेस। तो तुम्हारे सारे रिसोर्सेस जो है रिसोर्स ग्रुप में लॉजिकली ग्रुप हो जाते हैं। रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन दी एज़्योर मार्केटप्लेस, जैसा एक वर्चुअल मशीन। उसके बाद एज़्योर आइडेंटिटी, एज़्योर कंप्यूटर सर्विस है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ अदर रिसोर्सेज दैट विल आल्सो गेट क्रिएटेड अलोंग विद एज़्योर वर्चुअल मशीन। कौन सा बनता है? सबसे पहला सब्सक्रिप्शन नीड्स टू बी पार्ट ऑफ रिसोर्स ग्रुप। तुम्हारा एक ओएस डिस्क बन जाएगा। यू कैन ऑल्सो ऑप्शनली क्रिएट एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तुम चाहे तो एक नया और एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा सकते हो। Machine will also get a public IP address and private IP address. So you are creating a VM, but automatically these all things are going to be created in the background along with the Azure VM. So you can't say that मेरे को सिर्फ Azure VM चाहिए, ये नहीं चाहिए. They are all components of Azure VM. They are also a resource. Public IP एक resource है, private IP एक resource है, OS disk एक resource है, disk मतलब disk एक resource है, तुम्हारा जो ये VNet है ये एक रिसोर्स है। ये सब अलग अलग से भी तुम बना सकते हो, लेकिन जब वर्चुअल मशीन बनता है तो ये सब ऑटोमेटिकली बन जाता है, ओके। तो वही जब मैंने ये किया तो देखो मेरे को नेटवर्किंग, मेरे को डेस्क, ये सब बन गया। तो मैं यहाँ पर रिव्यू प्लस क्रिएट करूंगा, ओके। एंड आफ्टर दैट इट विल गिव यू द ऑप्शन, ये देखो ये क्या बोलता है, 6 रुपया 90 पैसा 1 घंटे का जाएगा, मतलब लगभग 7 रुपया। ये जो रिसोर्स जो है प्राइसिंग फॉर वीएम, अगर मैं बेसिक में आऊंगा, ठीक है। ये देखो इसमें मेरे को क्या बताया था, 5,048 रुपये का ये वर्चुअल मशीन है पर मंथ। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं मशीन बना दिया तो मेरा सीधा 5,000 चले जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या होगा, तुम्हारे को ये जो घंटे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से जो है ना 7 रुपया जाएगा, लगभग 7 रुपया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए मशीन यूज करता हूँ, मैंने वर्चुअल मशीन बना दिया और पूरे महीने में मैं सिर्फ 1 घंटा यूज किया वो मशीन, तो मेरा सिर्फ 7 रुपया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग एज़्योर क्लाउड, कि यू विल बी चार्ज फॉर ओनली व्हाट यू आर यूजिंग, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है, 8 घंटा मशीन चालू रखती है और रात में बंद। और अगर कोई क्रिटिकल है तो 24/7 चालू रहेगा। अगर 24/7 चालू रहेगा तो उसको 5,000 रुपया पूरा भरना पड़ेगा। अगर 24 आवर्स चालू नहीं है तो क्या होगा, सीधा सीधा कुछ नहीं करा है, सिर्फ घंटे के हिसाब से, सिर्फ जितने घंटे के लिए काम करते हो उतने ही घंटे के लिए ये मशीन चालू होगा। तो ये मशीन जब मैं चालू कर दूंगा, चालू करने के बाद अभी तुम लोग को मैं 1 घंटे के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो 1 घंटे के लिए मेरा 7 रुपया इसमें खर्चा होगा, ठीक है। सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। जब मैं क्रिएट कर दूंगा, यहाँ वर्चुअल मशीन में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखो मेरे को ये मशीन दिखा देगा। तो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड 2 मशीन्स। एक मेरा लैब का मशीन है, डू नॉट डिलीट मुस्तफा लैब VM1, ये मैंने खुद का एक बनाया है। और दूसरा जो है एक VM बनाया है तुम्हारे लिए मैंने, ठीक है। अब जब वर्चुअल मशीन बन जाता है तो दिस इज द कंसोल वर्चुअल मशीन का, जो है तुम सारे चीज यहाँ पर कर सकते हो, ओके। इफ यू गो ऑन ओवर यू विल सी दी पब्लिक IP एड्रेस। तो यहाँ पर तुम्हारे को पब्लिक IP एड्रेस मिल गया। एंड यू नोटिस दिस मशीन इज इन स्टॉप स्टेट, तो मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेट इट स्टार्ट, ओके। तो जब स्टार्ट मशीन जब बनता है तो वो बंद रहता है। यू हैव द ऑप्शन टू स्टॉप और स्टार्ट। स्टॉप बोले तो क्या है, मेरा काम खत्म हो गया और मैंने स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा, व्हेन आई स्टॉप दिस मशीन आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज, okay, even though you shut down from the background, this option will be stopped, okay. So this is giving me notification that it has been successfully started, okay. Now how I will connect, to connect that
I have to click on this icon. यहाँ पर it will give you the option कि what are the mechanism to connect to this virtual machine. So either you can go via RDP or SSH. Since this is the Windows machine, I will go via RDP. तो यहाँ पर अगर तुम RDP क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे को एक डाउनलोड फाइल देगा, डाउनलोड दी RDP फाइल. ओके, तो RDP फाइल डाउनलोड करूंगा और यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को कनेक्ट का ऑप्शन देगा. सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, it is giving me a ready-made console to connect to the virtual machine that I have just created. But technically what is happening in the background, if I go to overview, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, इसको कॉपी करो. ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट रन MSTSC ये डालूंगा और यहाँ पर मैं ये आईपी एड्रेस पेस्ट कर दूंगा. ठीक है, एंड देन आई विल क्लिक कनेक्ट. ये सेम ऑप्शन है जो जहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा था ना. तो लेट मी शो यू अगेन. अब ये मैंने मैन्युअली किया, तो यहाँ पर कनेक्ट RDP क्लिक करूंगा, डाउनलोड RDP फाइल ये क्लिक करूंगा. सो दैट इज द सेम ऑप्शन. ठीक है, क्या उसने वो आईपी एड्रेस को रिमोट ये किया है, सिर्फ इसको मैं कनेक्ट करूंगा. अब ये कनेक्ट कर दिया तो ये मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा. तो यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने दिया था वो ही डालना है. सो यहाँ पर मैंने यूजर नेम पासवर्ड इसका स्टोर करके रखा है, NFS user 1. ठीक है, तो ये यूजर नेम पासवर्ड याद है जब वर्चुअल मशीन अपन बना रहे थे तो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा था, तो वो ही यूजर नेम पासवर्ड अपने को यहाँ मेंशन करना है. नंबर भी ओके, it will give the certificate warning. We can ignore that. And now you can see I have connected to my cloud machines. ये जो मशीन मैंने क्लाउड में बनाया है उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है. It almost look like your बेस मशीन, या तो तुम्हारा जो फिजिकल मशीन है सेम वैसे ही दिखता है. ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेन मशीन है, यहाँ पर वही तुम्हारा सर्वर मैनेजर है. You can go to server manager and you can install Active Directory. You can install a DNS जो अपन स्टार्टिंग में लेक्चर में पढ़े थे, इनिशियल लेक्चर में. So everything you can do it. Okay, तो मिनिमाइज. ठीक है, so what I have just created a virtual machine and I saw how to create to that virtual machine using the public IP. Okay, public IP means this IP is दिस इज इंटरनेट फेसिंग. मतलब ये आईपी एड्रेस मेरे को मिल गया तो कोई भी मेरा मशीन का एक्सेस ले सकता है इफ ही हैज द यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, अब मैं और क्या क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ. अगर मेरे को हार्ड डिस्क ऐड करना है तो मेरा डिस्क देखना है, तो यहाँ पर मेरा एक डिस्क है. ठीक है, इस मशीन में मेरे को और एक हार्ड डिस्क ऐड करना है. ओके, सो इफ आई गो ओवर हियर, देखो इसमें कैसा है, एक टेम्पोररी स्टोरेज मिल जाता है. यहाँ पर सी ड्राइव है, मेरे को अगर यहाँ पर ई ड्राइव एफ ड्राइव ऐड करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इधर जाऊँगा क्रिएट एंड अटैच ए न्यू डिस्क. ठीक है, और इसको लॉजिकल यूनिट नाम दे दूंगा और डेटा डाल दूंगा. मैं बोलूँगा दिस इज फॉर एफ ड्राइव. ओके, तो यहाँ पर साइज मैं बोलूँगा इट शुड बी 40 GB. इट शुड बी 40 GB. ठीक है, और मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा. तो सेव कर दूंगा तो क्या होगा, इस मशीन में मेरे को एक 40 GB का एफ ड्राइव मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द ऑप्शन
to create and attach a new disk, which I am not going to do because hard disk का भी कुछ मिनट के हिसाब से कुछ पैसा लगता है, ठीक है. सो दिस स्टोरेज, तुम्हारा वर्चुअल मशीन बंद भी है तो ये स्टोरेज का पैसा लगेगा तुम्हारे को, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू इग्नोर दैट, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द ऑप्शन दैट if you are asked to add an additional attach or attach an additional hard disk to your existing VM, then this is the option. Okay, you have to go to virtual machines. Okay, and you have to go to this first blade, and here you have to click on this, and from here you have the opportunity or option to create and attach a new disk. Okay, so you can attach as many as disk you want. By default, one hard disk is created in which our OS is installed. जहां पर अपना विंडोज का OS इंस्टॉल है तो वो ऑलरेडी मिल जाता है तुम्हारे, ठीक है. अभी मेरे को एक लैन कार्ड डालना है, इसमें एडिशनल लैन कार्ड ऐड करना है, तो मैं को नेटवर्किंग में जाऊंगा. तो यहाँ पर आई कैन सी देयर इज ऑलरेडी वन लैन कार्ड, ठीक है. अगर मेरे को दूसरा लैन कार्ड अटैच करना है तो यहाँ पर मैं जाके क्लिक करूंगा अटैच ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. तो यहाँ पर क्या होता है, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ए रनिंग वर्चुअल मशीन. मतलब मेरा वर्चुअल मशीन चालू है, इसके लिए मैं अटैच नहीं कर सकता. तो तुम्हारे एक मशीन में 2 लैन कार्ड भी लगा सकते हो, ठीक है. तो ये जैसा इधर एक लैन कार्ड है, सो सेकेंड लैन कार्ड यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है. और साइज, यहाँ पर मैं साइज है ना कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है. जैसा मैंने 8 GB का ले लिया, लेकिन मेरे को अभी 16 GB करना है, तो मैं ये सिलेक्ट करके ना रीसाइज करूंगा. तो रीसाइज करूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरा मशीन है ना वो बंद होके चालू होगा. ओके, इफ द वर्चुअल मशीन करंटली रनिंग, चेंजिंग इट्स साइज कॉज इट टू बी रिस्टार्टेड, स्टॉपिंग द वर्चुअल मशीन में रिवील एडिशनल साइज. ओके, तो क्या बोल रहा है, तुम्हारे को अगर रीसाइज करोगे तो ये मशीन बंद होकर चालू होगा. ओके, सो गलती से मैंने 8 GB कर दिया, नो वरीज, you already have the option or opportunity to upgrade that machine or degrade that machine. So there is a option resize. लेकिन ये ऑन प्रीमाइसेस में कैसा था, तुम एक बार मशीन लेके आ गए तो गया. मतलब तुम्हारे को अगर लेना है तो तुम्हारे को अलग से रैम लेना पड़ेगा, 16 GB का रैम लेना पड़ेगा. अगर वर्चुअल सीपीयू, यहाँ पर देखो सीपीयू भी बढ़ रहा है, 2 वर्चुअल सीपीयू है तो 4 सीपीयू करना है, या तो 8 सीपीयू करना है, तो मेरे को फिर मदरबोर्ड नया लेना पड़ेगा. तो ये सब ऑन प्रीमाइसेस में यू हैव दैट लॉट ऑफ हेडेक ओवर देयर. बट हियर इट इज वेरी सिंपल दैट इफ यू जस्ट वांट टू रिसाइज द मशीन, just go to this resize option and just select the image or just select the size you want, and then you can resize. So coming back to the size option, there are D series machines, B series machines and E series machine. So ये B series machine क्या है, it is for जो है कम वर्कलोड के लिए. ओके, इसमें तुम देखोगे तुम्हारे को जनरल पर्पस के लिए. ओके, सो डी सीरीज में तुम्हारे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है. ई सीरीज थोड़ा एडवांस है. ओके, ई सीरीज में तुम्हारे को ये आई ऑप्स, ये रैम और ये टेम्पोरेरी स्टोरेज, ये सब अच्छा मिल जाएगा, ठीक है. और ये देखो ई सीरीज थोड़ा महंगा भी है. ओके, तो जनरली मोस्ट यूज बाय एज्योर जो है ना डी सीरीज है. एज्योर में सब ज्यादा लोग जो बनाते हैं वो डी सीरीज के मशीन ही बनाते हैं. तो यहाँ पर देखो कॉस्ट दिया गया है. तो इफ योर एडमिनिस्ट्रेटर आस्क यू दैट कि या तुम्हारा बॉस को पूछता है कि मेरे को एक वर्चुअल मशीन बनाना है, उसका मेरे को कॉस्ट निकाल के दिखा, तो यहाँ पर साइज ऑप्शन में आना, उसको बोलना है भाई देखो अगर तेरे को 4 वर्चुअल सीपीयू और 16 GB रैम के साथ चाहिए तो 10,000 रुपया महीना लगेगा एक वर्चुअल मशीन का. अगर नहीं कम है तो वो 7,000 का. ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के तुम्हारे बॉस को दे दो और बोलो भाई दिस इज द ऑप्शन, नाउ टेल मी व्हाट शुड आई डिप्लॉय. ठीक है, तो यू हैव ऑल दिस ऑप्शन, इतने सारे साइजेस है, इतने सारे, मतलब यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द साइज और यू कैन गो फॉर एनी साइज विच यू वांट. so there are many sizes. Okay? So based on your requirement and based on your workloads, you have to identify that which machine should you choose to for the proper performance. Okay, तो बराबर परफॉर्मेंस के लिए कौन सा मशीन तुम्हारे को ये लगेगा, ये तुम्हारे को प्रॉपरली तुम्हारे को सिलेक्ट करने आना चाहिए. ओके, देन यू हैव द ऑप्शन टू पैशन. पैशन क्या है, ये पैशन एक ऐसा सर्विस है
जहां पर तुम्हारे को आरडीपी की जरूरत नहीं है। ओके, Azure Web Service enable you securely and seamlessly RDP and SSH to your VM, secure Azure virtual network without exposing a public IP on the VM directly from Azure portal without need of any additional client or any piece of software. Azure Bastion सर्विस से क्या होगा, तुम्हारे को आरडीपी और एसएसएच के थ्रू मशीन को एक्सेस नहीं करना है, डायरेक्ट ये एज्योर पोर्टल के थ्रू ही तुम्हारा मशीन एक्सेस हो जाएगा, मतलब यही कंसोल में मेरा एक्सेस हो जाएगा। तो इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा ये है तुम्हारे को ये पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक आईपी का कोई जरूरत लगता है, तुम्हारे को रिमोट लेना है तो आरडीपी करने के लिए, लेकिन बैशन सर्विस इनेबल कर दोगे तो देखो यहाँ पर बैशन का ऑप्शन है, तो बैशन इनेबल कर दोगे तो ये जो कंसोल है ना तुम्हारे को यहीं पे दिखेगा। ओके, यहाँ पर ही तुम्हारे को मतलब एज्योर पोर्टल के थ्रू ही तुम मशीन्स को ये कर सकते हो, यू कैन एडमिशन विदाउट द नीड ऑफ एक्सपोजिंग द पब्लिक आईपी एंड विदाउट द नीड ऑफ टेकिंग द आरडीपी। तो यहाँ पर मेरा जो है सिक्योरिटी ज्यादा हो जाता है, बिकॉज माई पब्लिक आईपी इज नॉट एक्सपोज टू द इंटरनेट। ओके, एंड बैशन सेटअप करने के लिए तुम्हारे को स्टोरेज चाहिए, तो उसका अलग खर्चा है। सो that is the reason I'm not going to set up the Bastion because it requires a storage account. If I create a Bastion service, if I say configure a Bastion, it will require a storage account. Okay. Now next option is auto shutdown. Auto shutdown में क्या है कि रात को रोज मेरा मशीन इतने बजे बंद होना चाहिए, ठीक है, तो 7 बजे हर रात को मेरा यूटीसी टाइम 7 बजे मतलब इंडिया का टाइम 12:30 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को जो भी यहाँ पर टाइम जोन मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर अगर मेरे को रात को 1 बजे बंद करना है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा और आई विल सेव। तो क्या होगा, मेरा मशीन अगर मैं भूल भी गया बंद करने तो रात को ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अगर ऑफ करूंगा तो 24/7 चालू होगा। सेंड नोटिफिकेशन मतलब क्या, मेरे को एक ईमेल आ जाएगा, अगर यस क्लिक करूंगा तो ये मेरे से ईमेल आईडी पूछेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे को एक ईमेल आ जाएगा कि तुम्हारा मशीन अभी देखो 5 मिनट में बंद होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन, ऑटो शटडाउन। तुम अगर भूल भी गए तो तुम्हारा मशीन पैसा बच जाएगा। ओके, तो कभी मैं इसी कंसोल में अब तुम्हारे को पढ़ाते पढ़ाते चले भी गया तो रात को 1 बजे ये मशीन मेरा बंद हो जाएगा। और मेरा जो पैसा जो घंटे के हिसाब से जाएगा वो मेरा पैसा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जो भी तुम काम कर रहे हो ना वो अपडेट हुआ कि नहीं सक्सेसफुली यहाँ पर दिखेगा। सो दिस इज टेलिंग दैट अपडेट ऑफ शेड्यूल सक्सेसफुल, मतलब मेरा जो ऑटो शटडाउन है वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद है तुम्हारा रन कमांड। रन कमांड में पावरशेल स्क्रिप्ट। ठीक है, मेरे को मशीन्स के अंदर जाकर अब मेरे को इसमें जाके मेरे को कुछ पावरशेल कमांड रन करना है, तो यहाँ पर मशीन के अंदर आरडीपी लो, उसके अंदर जाकर मेरे को कुछ भी कमांड टाइप करो। ठीक है, ये सब मेरे को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने ये कमांड डाल दिया तो मेरे को ये पूरे सर्विसेज मेरे को ये मशीन के मिल गए। तो ये रन कमांड में क्या है, तुम्हारे को ये कंसोल में ही एज्योर के कंसोल में ही यू कैन रन द कमांड। तो क्या होगा, बैकग्राउंड में वो तुम्हारे वर्चुअल मशीन्स में ही वो रन कमांड चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेटी मच मैं सारे काम कर सकता हूँ विदाउट द नीड ऑफ टेकिंग द आरडीपी ऑफ द मशीन। क्योंकि गेट एफएन सर्विस डाल दूंगा तो इट विल शो यू कि ये कमांड रन होने के बाद आउटपुट यहाँ पर तुम्हारे को दिख जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शंस है रिसेट पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड रिसेट करना है यूजर का, तो मैं वो यूजर नाम डालूंगा और पासवर्ड रिसेट कर दूंगा। ठीक है, जो मेरा ये है, ये यूजर नेम पासवर्ड है यहाँ पर जो मैंने स्टोर करके रखा है यूजर नेम पासवर्ड,
ये टैग में मैंने स्टोर किया। जनरली यहाँ पर स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन मैं भूल ना जाऊँ तो इसके लिए मैंने यहाँ स्टोर करके रखा है। इन केस मैं भूल गया तो यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं, यहाँ पर जाके मेरे को रीसेट मारना है, तो रीसेट पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर मैं यूजर नेम डालूंगा और पासवर्ड रीसेट कर दूंगा। ठीक है। अगर तुम्हारे को इधर कुछ भी नहीं मिलता है ना तो सर्च में खाली मार दो। यहाँ पर अभी जैसे जाके मेरे को रन कमांड देखना है तो रन मारूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रन कमांड आ गया। तो जो भी करना है, अभी बैशन सर्विस मारना है तो मेरे को BAST मारूंगा, यहाँ पर बैशन सर्विस आ गया। ठीक है, मेरे को हार्ड डिस्क ऐड करना है तो डिस्क मारूंगा, नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क वैसा। तो एवरीथिंग इज सर्चेबल ओवर हियर। फिर बाद में मेरे को अलर्ट्स अलर्ट्स में मेरे को ये दिखाएगा कि भाई मैंने अलर्ट सेट नहीं किया है कि मशीन में क्या क्या अलर्ट्स है। मैट्रिक्स में मेरे को ये देगा कि परफॉर्मेंस, जैसा अपना टास्क मैनेजर रहता है ना, CPU usage। ठीक है, तो CPU क्रेडिट कंज्यूम मैं ये कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बताएगा कि CPU कितना यूज हो रहा है, कितना परसेंटेज यूज हो रहा है। ठीक है, फिर इफ आई गो ओवर हियर, रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ये इंटरव्यू में पूछेगा। अगर तुम्हारा वर्चुअल मशीन चालू नहीं हो रहा है या कुछ करप्शन हो गया तो क्या करोगे? रीडिप्लॉय और रीअप्लाई। ये क्या है रीडिप्लॉय और रीअप्लाई? ट्राई redeploy your virtual machine which will migrate your Azure machine to a new host। मतलब तुम्हारा मशीन अगर कुछ खराब हो गया तो तुम्हारा मशीन जो है ना दूसरे होस्ट में माइग्रेट हो जाएगा और वहां से चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक होस्ट है, ये 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 इतने सारे होस्ट है। तो तुमने जो मशीन बनाया, तुम्हारा VM, जो VM1 तुमने बनाया, वो किधर बना? इधर बना, ये इतना सा जगह ले लिया। ठीक है, लेकिन ये मशीन जब तुम चालू कर रहे हो, चालू नहीं हो रहा है, करप्शन है या कुछ तो पंगा हो गया है, तो मैं जाता हूँ एज्योर में और मैं बोलता हूँ रीडिप्लॉय। तो रीडिप्लॉय करने से क्या होएगा? ट्राई रीडिप्लॉइंग योर वर्चुअल मशीन विच विल माइग्रेट इट टू अ न्यू एज्योर होस्ट। तो क्या होगा, तुम्हारा ये जो VM है ना, शायद उसका इसका हार्डवेयर से कुछ पंगा रहेगा, कंपेटिबिलिटी रहेगा, ये वर्चुअल मशीन है ना माइग्रेट होके यहाँ चले जाएगा, या फिर कोई भी एक होस्ट में चले जाएगा। ठीक है, और ये मशीन जो है यहाँ पर जाकर चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा वर्चुअल मशीन एक सर्वर से निकलकर दूसरे वर्चुअल मशीन में माइग्रेट होता है, उसको बोलते हैं vMotion। ओके, सो इससे क्या होता है, तुम्हारा जो भी अगर करप्शन है, अनवांटेड जो भी इश्यूज है, वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो दैट इज द ऑप्शन रीडिप्लॉय। सो रीडिप्लॉय करूंगा तो मेरा सर्वर होस्ट 1 से निकल के होस्ट 2 में चले जाएगा, या तो होस्ट 3 में, या तो कोई भी अवेलेबल होस्ट में चले जाएगा। एंड इन दैट वे all the corruption and all the misconfiguration or whatever issue that is related to the virtual machine will be rectified। Okay, so that is the option of redeploy। so interview question कैसा रहेगा? अगर तेरा वर्चुअल मशीन चालू नहीं हो रहा है, अगर तेरा वर्चुअल मशीन में कुछ पंगा है, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट और देयर इज सम इशू और कुछ ना कुछ बता रहा है, तो क्या करोगे? तो यू हैव टू टेल हिम दैट आई विल गो टू रीडिप्लॉय ऑन रीअप्लाई ऑप्शन, आई विल क्लिक ऑन रीडिप्लॉय और आई विल सिंपली क्लिक ऑन रीअप्लाई। तो यहाँ पर जाके रीडिप्लॉय मारोगे, यहाँ आ गया ऑप्शन। ठीक है, रीअप्लाई क्या करेगा? ट्राई रिप्लाइंग योर वर्चुअल मशीन, दिस ऑप्शन विल रीरन VM प्रोविजनिंग एंड हेल्प सॉल्व द VM फेल स्टेट केस। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे होस्ट में माइग्रेट नहीं करेगा, ये उसी होस्ट में करप्शन निकालकर वापस से प्रोविजन करके देगा तुम्हारे को। ठीक है, रीडिप्लॉय में क्या होगा, ये मशीन यहाँ से वहां जाएगा और चालू होगा। रीअप्लाई में क्या होगा, यहीं पे ये मशीन जो है ना, यहीं पे ऑटोमेटिक रिपेयर होगा, लेकिन यही होस्ट पे रहेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिप्लॉय और रीअप्लाई। सो वापस से प्रोविजन होगा तुम्हारा मशीन एंड इट विल हेल्प सॉल्व द VM फेल स्टेट। और उसके बाद और एक ऑप्शन है जो फाइनल ऑप्शन मैं अभी दिखाता हूँ, देन वी कैन डिस्कनेक्ट। बूट डायग्नोस्टिक। ये बूट डायग्नोस्टिक क्या करता है, ये बताएगा कि तुम्हारा मशीन कौन से स्टेट में। तो ये स्क्रीनशॉट देखो दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा मशीन हेल्दी है। सीरियल लॉग में
यहाँ पर ये तुम्हारे को पूरा बताएगा कि क्या क्या हुआ मशीन के साथ, ठीक है। द कमांड इज नाउ अवेलेबल, स्लैक विल बी अनअवेलेबल, द कंप्यूटर इज शटिंग डाउन, ओके। ये मशीन मैंने थोड़ी देर पहले शट डाउन किया था, ठीक है। तो द कंप्यूटर इज शटिंग डाउन, ये मशीन कभी चालू हुआ, इसमें कुछ भी हुआ, तो ये जो लॉग्स है ना, इसको एरर तुम डालोगे तो वो एरर तुम गूगल में या तो ऑनलाइन में पेस्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये मशीन में प्रॉब्लम क्या है। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स के लिए है। बूट डायग्नोस्टिक क्या है कि मशीन के साथ क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या इशू है, सारे चीज यहाँ पर लॉग्स हो जाते हैं। तो दैट इज द सीरियल लॉग। तो मशीन जब करप्ट हो जाता है, यू वांट टू ट्रबल शूट, देन दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन कलेक्ट द लॉग्स। और जब तुम माइक्रोसॉफ्ट में टिकट कॉल विल लॉग करते हो तो उन लोग भी बोलेंगे भाई बूट डायग्नोस्टिक का लॉग्स दे। तो कुछ नहीं करना है, इसको खाली कॉपी कंट्रोल ए मार के कॉपी करना है और पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट को दे देना है। सो दे विल, या तो तुम यू कैन डाउनलोड एंड सेंड इट टू, ठीक है। So these are the various options that you can do after the creation of virtual machine. Okay. तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, मैंने सब कुछ बताया, रीडिप्लॉय बूट डायग्नोस्टिक क्या है। ओके, आई विल शेयर यू दिस डॉक्यूमेंट। ओके, ये कैसा रन कमांड कैसा काम करता है, सीरियल कंसोल ये क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट इसमें अपन जो है ये VMS पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे, लोड बैलेंसर थोड़ा पढ़ेंगे। ये सब अपन कमिंग चैप्टर में मतलब नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं, which could be probably on Monday or either on Tuesday. Okay, so I am going to stop this machine and I will ensure that it is also stopped over here so that I am not charged. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं भूल भी गया तो रात को वो 1 बजे वो बंद हो जाएगा। So any questions anyone has? Or if anyone have any questions, you can either put it in the chat box or either you can unmute yourself and you can pose the questions. Any questions, anyone? Or you can always post the, should go through my recordings and always post the question to me in WhatsApp or offline. Okay. Okay, so I assume that no one has any question. I am going to stop the recording. And I hope this session was informative and